So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I'm hoping a very good and bright future for you all. So, आजकल एग्जाम्स होने वाले हैं या कुछ लोगों के सेंड एंड अप हो गए हैं, कुछ के हो रहे हैं. So, all the best for your exams and please be attentive, everyone. Listen to me carefully for my today's lecture, and that is about SSC2 biology. And once again, I am at not once again, by the way, this is my first lecture from chapter number 13, by the way, in your book, in 10th book. This is supported movement chapter number 4. I put that 4 over here because for my ease, so it is actually chapter number 13. Then is a quick review. So before starting today's lecture, we have to go through some questions from the last lecture. And what is the composition of cartilage? So who is going to tell me the composition of cartilage? And that is chondrocytes. Good, along with some matrix proteins, which is most of them collagen. Name various types of cartilage, and you need to tell me the various types of cartilage. Importance of the support system in human body. Now, what is the importance of the support system in human body? What are osteocytes? So, do you know what are osteocytes? So, these are the word osteo means the bone, cytes means cells. So, bone cells, these are bone cells which are present in our hard bones. And then for some fractured bone, which kind of cellular cells are needing to repair it? So which kind of cells are needing for repair of the bone cell? These are osteocytes are needing for this kind of repair. So that's about the last lecture. So some of the students have have some problem with the division of the skeletal system. So I'm sharing this lecture with you people, and please, if you have any confusion, although this topic comparatively is considering as easy topic, still some of the students have found some difficulty in it. So that's why I have made the lecture on it. So division of skeletal system. So skeletal system थोड़ा सा पहले पता होना चाहिए. What is that skeletal system? The skeleton, the whole overall bones in our body, which are responsible for giving the shapes to us, which are responsible for ये जो आप walk कर रहे हो ना, move कर रहे हो, आप अपने आप को against the gravity by the way move कर रहे हो ना, so for this bones and skeletal system is important for us for this kind of movement. वो हमें इतनी support दे रहा है body को कि वो against the that gravity move कर बन के एक पाँव को उठा के आगे रखना. This is very important and it's very difficult as well, and this is our skeletal system which is going to help us in this. So a skeletal system has two major divisions. One is the axial skeleton, another is appendicular skeleton. So first of all, यहाँ तो आप ये दो नाम याद कर लो. So the skeletal system is of two types, axial and appendicular. Now look at this diagram. This is some of the bones are blue in color and other bones are sort of white, I don't know, light of white color, colored bones या light brown शायद कह रहे हैं आप, मुझे नहीं पता इसके बारे में. So anyways, दो colors हैं, right? Light blue, this is whatever the part of the body, bones, ये हमारा पूरी body का skeletal system है, ठीक है ना? जितना भी portion blue है, this is axial and the rest is this one. Let me take the pointer. This. Now, that blue portion is your axial skeleton, and that brown portion is your appendicular skeleton. So these two kinds of bones are present in our body. Axial means present on some axis, so they are on the major axis of the body. And appendicular are called as the appendages, means जो axial से connected हैं, उससे बाहर लटके हुए हैं, उन्हें हम appendages कहते हैं. So in this structure, the blue portion, that blue portion is basically the skull. ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये पूरी बॉडी की क्या चीज़ है? ये स्कल है. इसमें दो तरह की बोन्स हैं, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. जितना भी ब्रेन को कवर कर रहा है वो क्रेनियम है, और जितनी भी फेस में बोन्स हैं, यानी ये फ्रंट वाली बोन, ये चीक बोन, नोज, अपर जॉ, लोअर जॉ, दीज बोन्स आर बेसिकली द फेशियल बोन्स. और ये जो ऊपर ब्रेन को कवर कर रही हैं, दीज बोन्स आर कॉल्ड एज द क्रेनियम. क्रेनियम बोन्स पता है ना आपको? क्रेनियम सुना हुआ वर्ड है ना आपके लिए? ओके ओके, देन नाउ दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम. ये सारा वर्टिब्रल कॉलम है जिसकी वजह से हम वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं. ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बोन है बॉडी की. ओके, एंड देन वर्टिब्रल कॉलम के पिछले स्पाइंस और आगे पीछे वर्टिब्रल कॉलम है ना, और उसमें से ये लंबी लंबी डंडियां स्पाइंस निकली हुई हैं. और ये फ्रंट पर दैट बोन इज कॉल्ड एज स्टर्नम, सीने की हड्डी. जब हमारा बाईपास होता है ना, तो ये वाली बोन को ब्रेक करना पड़ता है. एनीवेज, सो दिस इज स्टर्नम. और पीछे बैक बैक पे वर्टिब्रल कॉलम, फ्रंट पे सीने की जो हड्डी है स्टर्नम है, एंड एट द बैक राइट राइट बिलो दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम. तो दोनों बोन्स प्रेजेंट है और इनके दरमियान में एक केज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है ना?
पिंजरा सा बन चुका है। पीछे से ये कनेक्टेड है बोन्स विद द स्पाइंस ऑफ द वर्टेब्रल, आगे से ये स्टर्नम से कनेक्टेड है बोन्स, और ये इन्होंने ये पूरी ये बोन ये केज बना दिया, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिब केज। ये रिब्स हैं हमारी पसलियाँ, ठीक है, सुना हुआ वर्ड है। सो स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, sternum, rib cage are actually the part of axial skeleton. Rest ये हमारा शोल्डर ब्लेड यानी कि पेक्टोरल गर्डल, ठीक है ना, इसमें ये, और फिर हाथों की हड्डियाँ, हाथों की नहीं, आर्म की, बाजू की, एंड देन हिप बोन, एंड देन द लोअर लिम्ब। तो ये अपर लिम्ब कहलाती है, ये लोअर लिम्ब कहलाती है। दिस इज पेल्विक गर्डल, दिस इज पेक्टोरल गर्डल। तो ऑल दीज फोर टाइप्स ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर अपेंडिकुलर स्केलेटन। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। इसमें आपको जो लाइट सा शेड नज़र आ रहा है, जो रेड है वो तो पेंडिकुलर है, उसको छोड़ दें। अब यहाँ से देखेंगे आपको फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है, इंटीरियर व्यू आप कह सकते हो, या फ्रंट व्यू, या वेंट्रल व्यू भी आप कह सकते हो ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, एंड दैट इज द बैक व्यू ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, ठीक है ना। ये पीछे से इस तरह के हम नज़र आते हैं और फ्रंट से इस तरह के, ठीक है। और इधर फिर से पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें स्कल है, फिर रिब्स हैं जो एरोहेड भी लगा हुआ है, फिर वर्टिब्रल कॉलम है, ये स्कल आ गई, ठीक हो गया, ये रिब्स आ गई हैं, और फिर ये वर्टिब्रल कॉलम आ गया। ये थ्री मेजर बोन्स आर प्रेजेंट इन द इन एक्सियल स्केलेटन। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बोन्स और भी हैं। कान में है आपकी थ्री बोन्स हैं, याद है ना, ऑसिकल्स जिनको हम कहते हैं, तो दोनों कानों में ऑसिकल्स हैं। इसके अलावा एक और बोन है जिसका नाम है हायोइड बोन है। हायोइड बोन है वो आपके बिल्कुल नेक और लेरिंग्स के दरमियान में कनेक्टेड है। मैं दिखाती हूँ आपको। सो ये था एक्सियल स्केलेटन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नाउ लुक एट दिस, दैट ब्लू पोर्शन इज एक्चुअली द एक्सियल। ये देख लो, रिब्स दिखा दी, ये थोरेसिक केज जिसको कहते हैं, या रिब केज कहते हैं, ठीक है ना। ये पूरी बनती है, पीछे से स्पाइन से कनेक्टेड है, आगे से स्टर्नम से कनेक्टेड है। ये तो हो गया रिब्स। फिर ये आ गया पूरा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। 33 वर्टिब्री है हमारे पास, ठीक है, जिसमें से ये वाली 9 वर्टिब्रीज फ्यूज्ड हैं। ये टेल बोन थी, जो हमें टेल तो नहीं बनी, इसलिए वो सारी बोन्स फ्यूज होकर छोटी छोटी हो गई। सो दिस इज कॉल्ड एज सैक्रम। और ये 33 इन ऑल आर द वर्टिब्रेज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, मोहरे जिन्हें कहते हैं। देन इज द स्कल आपको नजर आ रहा है, और ये लेरिंग्स का स्केलेटन है, एक हायोइड बोन, छोटी सी बोन है जिसको हम कहते हैं, और यहाँ स्कल के अंदर ऑसिकल्स भी हैं। ये हमारा सारा का सारा एक्सियल स्केलेटन है। ना रिब केज नज़र आ रहा है आपको, रिब केज के साथ स्टर्नम नज़र आ रही है, और वर्टिब्रल कॉलम भी नज़र आ रही है। फिर ये स्कल नज़र आ रही है। अच्छा, अब हम इनके नंबर्स देख लेते हैं। स्कल वो कहता है जी 29 बोन्स हैं स्कल में, ठीक है। अभी बताती हूँ कैसे। वर्टिब्रल कॉलम में 24 बोन्स हैं, रिब्स भी 12 पेयर्स हैं, 24। इसके अलावा एक स्टर्नम की बोन है, एक सैक्रम की बोन है। इनकी वर्टिब्रल कॉलम में 33 मैंने बताए थे ना, 24 प्लस 1 सैक्रम, तो वो 24 और 9 देखो कितने बनते हैं, 33, ठीक है ना। ये सैक्रम में 9 बोन्स हैं। सैक्रम और सॉरी सैक्रम और कॉक्सिस मिला के 9 बोन्स हैं, ठीक है। तो वो दोनों मिलाकर 33 बनते हैं। सैक्रम में 4 बोन्स हैं, और कॉक्सिक्स, सैक्रम में 5 बोन्स हैं और कॉक्सिस में 4 बोन्स हैं। इन ऑल ये दोनों मिला के 9 बनाते हैं। टोटल बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन इज 80। टोटल बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन इज 80। अब मैं आपको एक डिटेल देना चाह रही थी कि क्या क्या स्कल में शामिल है। अब स्कल में 29 बोन्स हैं, ठीक है। 8 बोन्स जो हैं क्रेनियन की हैं, फेस की 14 है, और ऑडिटरी की 6 हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 14 और 8 तो 22 हो गए, 22 और 6 28 हो गए, और ये एक हाईवर्ड 29 हो गए, ठीक है। स्कल में इन ऑल 29 बोन्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्रेनियम जो ये वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर ब्रेन है, इट इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। देन फेशियल बोन्स आर 14 इन नंबर। ऑडिटरी ऑसिकल्स 6 है, 3 इस कान में, 3 इस कान में, और एक हायोइड बोन है जो लेरिंग्स के ऊपर एक छोटी सी पतली सी बोन प्रेजेंट है। ये भी स्कल का ही पार्ट है, और ये स्कल में इन ऑल 29 बोन्स हैं। एंड देन थोरेसिक केज पे आते हो आप, तो 24 रिब्स हैं, एक स्टर्नम है, तो इन ऑल ये बन गई 25। वर्टिब्री में 26 हैं, 24 प्लस 1 सैक्रम एंड 1 कॉक्सिक्स, तो वो बन गए 26, ठीक हो गया। ये सारी डिटेल है पूरी बोन्स की। आप इसको ध्यान से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास सेव कर लो, बुक पे नोट कर लो, कभी भी नहीं आपको फिर इंशाल्लाह ये भूलेगा।
So in all 80 bones in our axial skeleton. Then is appendicular skeleton. Appendicular skeleton has that shoulder girdle or the pectoral girdle, right? Then this is pelvic girdle or hip bones. Then this is forearm, upper limb, and this is the legs और द लोअर लिम्स. ठीक है ना, ये सारी, ये देखो ये पेल्विक गर्डल अलग करके दिखाई है, ये शोल्डर ब्लेड अलग करके दिखा रहे हैं आपको, गर्डल पेक्टोरल गर्डल, ये पूरा बाजू है और ये पूरी टांग है. तो चार चीजें आर प्रेजेंट इन आर अपेंडिकुलर स्केलेटन. तो सारे सुन रहे हैं, जागे हुए हैं. ओके जी, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसको मैंने दोबारा से कट करके दिखाया था आपको. ये देखो पीछे हमें ये वो वाली हड्डी है ना जिसमें अक्सर खारिश होती है तो हमारा हाथ नहीं जा रहा होता, तो ये वो वाली बोन है, शोल्डर ब्लेड से कहते हैं. दैट इज द पार्ट ऑफ द पेक्टोरल गर्डल. और फ्रंट पे एक बोन है, ब्यूटी बोन सुना होगा आप लोगों ने, लड़कियों की अक्सर ब्यूटी बोन होती है, फ्रंट पे एक बोन निकली हुई होती है, दैट व्हाट इज कॉल्ड एज क्लैविकल. ठीक है ना, ये दोनों बोन्स मिलकर आपका पेक्टोरल गर्डल यानी कि कांधा बनाती हैं, शोल्डर गर्डल बनाती हैं. फिर जो बोन्स ऑफ द आर्म्स हैं, पहले चलें वो देख लेते हैं. पेक्टोरल गर्डल में चार बोन्स हैं. कौन से, कैसे चार? दो ये पीछे शोल्डर ब्लेड और दो आगे क्लेविकल्स. ठीक है, आगे वाली दो क्लेविकल्स हैं और पीछे वाली ये क्लेविकल्स दो आ गई और शोल्डर ब्लेड भी दो आ गए. अपर लिम्ब पे आ जाओ. अब ये वाला हिस्सा जो होता है आर्म का, ठीक है ना, ये पूरी हाथ बाजू को क्या कहते हैं? अपर लिम्ब. इसमें 30+30 मतलब दोनों बाजुओं में, एक बाजू में 30 बोन्स हैं. कैसे? आर्म में 1+1, ऊपर वाली बोन एक, ये वाली ह्यूमरस. ठीक है, इसको ह्यूमरस कहते हैं. अभी आपको नाम की जरूरत नहीं है, आपको बस आर्म की जरूरत है. तो आर्म जो पार्ट होता है, बाजू का जो हिस्सा है, ये एक, दोनों 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 बाजुओं में एक एक है. फिर फोर आर्म में दो बोन्स हैं. ठीक है, तो दोनों बाजू हैं तो चार बोन्स हो गई, 2+2 हो गया. और फिर हैंड में 27 बोन्स हैं. एक हैंड में 27 बोन है, जिसमें रिस्ट और हैंड दोनों मिला के करना है. रिस्ट में 8 बोन्स हैं. आपकी बुक में चूंकि मेंशन नहीं था इसलिए मैं बस बता रही हूँ. रिस्ट इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स, देन palm is made up of 5 bones and 14 bones are present in our fingers, phalanges जिन्हें हम कहते हैं. ठीक है, ये जो बोन्स नजर आ रही है ना आपको, ये 14 bones हैं. and the palm is made up of 5 bones, तो नजर भी आ रहा होता है, 5 bones. and then wrist is made up of 8 bones, तो 8 plus 5 plus 14 is equal to 27, and 27 bones in each hand is present. 27 plus 27 plus this, it is 30 each, and 30 और ये पेक्टोरल गर्डल प्लस अपर लिम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स आ गई 64. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अपर लिम इज 64. देन अपेंडिकुलर स्केलेटन पे आ जाओ आप. अभी आप ये देखो, ये कोक्सा बोन है. ठीक है ना, दिस इज द पेल्विक गर्डल और पेल्विक बोन. ठीक है ना, जो बोन हमारी हिप्स में है. ठीक है, ये वाली बोन है हमारी, ये दो बोन्स हैं, इनकी काउंटिंग ही 2 है, बाकी इसमें बोन्स तो हैं लेकिन ओवरऑल काउंटिंग में नहीं आ सकती बिकॉज दे हैव फिक्स्ड जॉइंट्स. एंड देन दिस इज द अपर लेग जो होती है, लेग जिसे हम कहते हैं, ये फीमर है. फिर नीचे फिर देखो दो बोन्स हैं. ठीक है ना, तो पूरी हमारी टांग में 3 बोन्स है, जैसे हमारे हाथ में ना 3 बोन्स, जैसे टांग में भी 3 बोन्स है. बट देयर इज अनदर बोन दैट व्हाट इज कॉल्ड एज पेटला. पेटला इज एक्चुअली द नी बोन, नी कैप, जो घुटने के ऊपर एक बोन लगी होती है, नी कैप. टांग में ये एक एक्स्ट्रा बोन है. ठीक है ना, सो लेग्स, और दोनों लेग्स में 4 4 ईच, जबकि आर्म में, दोनों आर्म्स में 3 3 ईच थी. ठीक है, लेकिन लेग्स का डिफरेंस है क्योंकि पेटेला बोन इज देयर, राइट. एंड व्हाट अबाउट द लोअर, जो व्हाट अबाउट द फुट, यहाँ पे अगर आपको याद है तो रिस्ट बनी थी 8 बोन से, लेकिन टार्सल्स में, आई मीन जो एंकल है, एंकल 7 बोन से बना हुआ है. देखो यहाँ पे एक बोन कम हो गई और लेग में एक बोन ज्यादा होगी, तो इक्वल नंबर वुड रिमेन द सेम. ठीक है, सो उसी तरह 5 आपकी उसमें होंगे, जो आपका सोल बनाएंगे, और 14 फेलेंजीज हैं आपकी पाँव की उंगलियों में भी, मतलब टोज में भी 14 bones are there which are called as phalanges. So in all, foot consisting of 7 plus 5 plus 14, in all they are becoming 26. तो दोनों फुट में 26 plus 26 bones है. Let me check. So pelvic girdle 1+1, दो हैं, एक बोन ये रही, एक बोन ये रही. So pelvic girdle में दो आ गई. लोअर लिम्ब पे आते हैं. Leg 4+4. 4+4 I have already explained to you. This is femur, this is tibia, this is fibula, and this is kneecap, patella. So all 4 bones are there. So leg में 4+4, and then foot has 26 bones, like 7 plus 5 plus 14. So these are 26. 26 plus 4, 30 plus 30, ये फिर बन गई और वो 2 बनी. ठीक है ना, तो ये 30 बन गई दोनों legs, and 62 bones are present in your appendicular skeleton and
62 62 bones तो आपकी इसमें आ गई ना ये total bones in appendicular skeleton is 64 plus 62 126. So 80 bones would be in axial skeleton and 126 bones are present in our appendicular skeleton. 80 plus 120 would be equal to 206 bones and are in some adult human being there are 206 bones are there जो मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी बोन किस तरह प्रेजेंट है. लेट्स हैव अ रीकैप. सो ये एक देख लेते हैं दोबारा. एक्सियल एंड एपेंडिकुलर डिविजन्स देख लेते हैं. एक्सियल में 80 बोन्स हैं, एपेंडिकुलर में देयर आर 126 बोन्स. सो द बोन्स व्हिच आर द पार्ट ऑफ द एक्सियल स्कल, vertebrae, ribs and sternum, artery ossicles and hyoid. And while in the appendicular, the upper pectoral girdle and arms, it's going to make 64, and the pelvic girdle and feet is going to make 62. And then this is once again, I'm showing you the figure of the appendicular skeleton and axial skeleton. Ye sara portion is actually the axial skeleton, and this portion is actually the appendicular skeleton. These are the clavicle bones, clavicles and shoulder blade, and these are the arms, and these are the pelvic girdles, and these are the legs. So I'm hoping कि आपको बात समझ आ गई है. But if you have any difficulty, you want to ask anything, I'm always available to you people. And inshallah ताला हम दोबारा मिलेंगे in the next video. Up till then अपना बहुत सारा ख्याल रखो. अल्लाह हाफिज.